पे अपलोड कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग वाली। यस अब ठीक है। जी, starting with strategic planning today, we were discussing strategy in the last class. Today's topic is corporate, business, and marketing strategy. Corporate strategy, business and marketing strategy process, internet strategy नहीं है, this is internal strategy. Right, let me change it. This is internal. Internal strategy, preparing the marketing plan. So this is very important topic because it covers one of the greater portions of the course, marketing management. If you could learn corporate strategy, what is business strategy, what is strategic communication process, and what is marketing plan. So this would be a comprehensive, understanding about the strategy and about marketing management course in general overall. Fine. Right, moving to the slide number 3, that is corporate, business, and marketing strategy. This diagram shows that one is corporate strategy that is always at the top. The head office, whatever the think tank of your organization is, that is responsible for formulating the corporate strategy. All this process that is being done in head office, then market knowledge, opportunities, and threats. Then we translate, or then we formulate, a smaller strategy that is known as business strategy and marketing strategy. Business and marketing strategies, these are formulated, in the head office, and these are, the sub parts of the corporate strategy. But these are the practical strategies that are being implemented at the ground level in the different cities in the branch level. Fine, but that is formulated in the head office. And corporate strategy is a bigger strategy. Business strategy is a bit smaller strategy than corporate strategy, and the marketing strategy is a bit more, smaller than the business strategy. Because if we draw a diagram, so biggest is the corporate strategy. In the middle level there is business strategy, and in the lower level that is marketing strategy. So strategic direction, resources, and constraints. The corporate or the head office, which is responsible for formulation of the corporate strategy, that needs two things to design business strategy, marketing strategy. One thing that it requires, that is the strategic direction, resources, and constraints. What is the strategic direction? What is the company thinking to go with? Where is company thinking to go ahead? That is your direction. Fine. Resources, what are the resources? What are the assets? What are the human resources? What are the finances? All kinds of resources that company has. And the third thing is the constraints. Constraints means problems. What are the problems? What are the strategic constraints? Company can go for this product, company cannot go in this market, company can design a strategy for this kind of target market, company cannot design a strategy for this kind of marketing. So there is always constraints for any company. No company can play in the market without any constraints. So all the companies, they have more or less, constraints or problems for themselves. Market knowledge. Of course, if the people who are sitting in the head office, they are required to develop, the business and marketing strategy. If they do not have the right market knowledge, they cannot come up with the right strategy. If they do not know about the opportunities which the market is offering right now, for example, these days, COVID-19, we are passing through, the pandemic situation of coronavirus, right? And this situation that is offering many opportunities for different kind of businesses. This is a year of e-commerce. I mean, every second company that is designing its website, and every second company that is offering, its products and services over the internet. So this kind of opportunity to design a website and to offer an online services, I mean, this is opportunity, but it's being created by the environment today, because there is virus, there is infection, so the people cannot go physically to the market. So you can convert your store traffic into your website, and you can sell the same product
in a safe and secure way. So there is opportunity and threats. Of course, we were talking about the constraints on the side, and threats are the constraints or the problems that are being imposed by the environment. These threats are usually imposed by the competitors and the governments and the regulations and whatever that is that has some kind of influence over your business. That is threats. अंश समझ आती है कि नहीं आती? यार तेज तो नहीं बोलता, अंग्रेजी कबूल है? सर आती है लेकिन थोड़ा स्लो बोले, अगर बच्चों को नहीं वो स्पीड में आप बोल लेते हैं, हम इतनी स्पीकिंग पावर नहीं हमारी अब। अच्छा जी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो ज़ाहिर हेड ऑफिस में बनती है, और हेड ऑफिस में जो लोग बैठे लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे होते हैं, वो इसी चीज़ की ले रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी का विजन डिसाइड करना है, कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिजाइन करनी है, और वो कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। राइट, कंपनी अगले 20 सालों में क्या कर रही होगी, 50 सालों में वो क्या देख रही होगी, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट विजन और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी तो वो वाली चीज़ें हैं, बहुत पढ़ी लिखी बातें हैं, और वो आपका और मेरा कंसर्न नहीं है। आप और मैं वहाँ जॉब करते हैं उस कंपनी के अंदर, हमें उतना ही बताया जाता है जितना हमारी समझ में आता है। तो हमें एक बिजनेस स्ट्रेटेजी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करके दी जाती है। वो बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करने के लिए जो कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर लोग हेड ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, एक तो उनको मार्केट नॉलेज होगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा होगा, और मार्केट में थ्रेट्स का अंदाजा होगा, तो एक अच्छा बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर पाएंगे। दूसरी साइड पे क्या होगा, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ऑफ कोर्स उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट करनी है अपनी कंपनी की। अब जो पिज़्ज़ा हट है, हम बात अगर करें, तो वो इतनी बड़ी फास्ट फूड कंपनी है, उसने कभी बर्गर नहीं बनाया, उसने हमेशा पिज़्ज़ा बनाया। उसने कभी कोई और इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना के मार्केट में फेंका। अब उसको पता है कि मेरी एक डायरेक्शन क्या है, कि जिसमें फास्ट फूड में एक सर्टन प्रोडक्ट है, तो मुझे उसके साथ प्ले करना है। सेम इज द केस विद बर्गर किंग। मैकडोनल्ड्स ने कभी पिज़्ज़ा नहीं बनाया, बर्गर किंग ने कभी शायद पिज़्ज़ा नहीं बनाया। तो है क्या कि कंपनीज दे आर वेरी वेल फोकस्ड इन सर्टन डायरेक्शन, कि जी मुझे ये करना है और मुझे इसी में एक्सपर्टीज हासिल करनी है और मुझे इस बिजनेस को लेके आगे जाना है। अब वो मैकडोनल्ड्स फास्ट फूड का ब्रांड है, कल को वो जूते लगा ले, परसों को वो कोई देसी नाश्ता लगा ले, ठीक है, और वो सोचे यार मेरा ये तो बर्गर तो यार बिक नहीं रहा, तो मैं लोकल मार्केट को देखते हुए और चीजें कर लूँ। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो बड़ी क्लियर है, और उसकी मैनेजमेंट को पता है। वो ये नहीं है कि जी हमारी जो मैकडोनल्ड की ब्रांच फैसलाबाद में है, ये गुजरावाले में है, ये जड़ावाले में, वो नहीं चलती। लेकिन नहीं, वो तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है ना, तो ग्लोबल ब्रांड है, उसकी पता नहीं कितनी 100 ऑफ द ब्रांचेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ द ब्रांचेस हैं अक्रॉस द ग्लोब, और उसके क्या उसके पास एसेट्स हैं, क्या उसके पास मैन पावर है, क्या उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस होंगी। रिसोर्सेज हर तरह के होते हैं। आपके पास पैसा कितना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, आपके पास कितनी स्किल्ड लेबर काम करती है, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कितना अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है, सप्लाई चेन आपका कितना अच्छा है, और सारे ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, आ जाके जितने भी व्हीकल्स आप ओन करते हैं, ये सारे के सारे आपके रिसोर्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अब जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी जब बैठ के रियल टाइम ऑपरेट कर रही होती है, अगर आप एक छोटी सी दुकान को ले लें, आपकी फैमिली में लोग बिजनेस करते होंगे, आपके फादर को कपड़े की दुकान होगी उनकी, या किसी भी चीज़ की, तो ऑफकोर्स कोई भी बिजनेस को बंदा रियल टाइम बैठ के मार्केट में करता है, तो उसके पास फ्री एंड नहीं होता। मार्केट का एक अपना प्रेशर होता है, राइट। मार्केट की एक अपनी सिचुएशन होती है, डे टू डे बेसिस पे चेंज हो रही होती है। उस मार्केट के, वो जहां आपकी दुकान है, उस मार्केट की कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं। आप एक कीमत से नीचे जाके अपना कपड़ा, अपना फैब्रिक, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आप पे कंस्ट्रेंट्स है, आप मार्केट खराब कर देते हैं, ठीक है। या आपको बहुत ही मतलब जारहाना अंदाज में अपने बिजनेस को उस तरीके से वो करने नहीं देंगे। वहाँ लेबर यूनियंस बनी होंगी, वो कुछ ना कुछ आपको वो प्रॉब्लम्स हैं। अगर यहाँ से जान छूटेगी तो फिर सरकार आ जाएगी, सरकार से जान छूटेगी तो फिर कोई कंपटीटर आ जाएगा। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं वहाँ काम करने के। उसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड ये आपको वो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यूजुअली ये जो मतलब एक सफ़र है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से शुरू होकर नीचे तक आने का, वो किस तरीके से है। अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी सबसे ऊपर जो स्ट्रेटजी है, उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। मैं इसको ये थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, उसमें डिसाइडिंग द स्कोप, आपके बिजनेस का स्कोप क्या है, आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्यों है,
और क्या है और आपका बिजनेस क्या होगा क्या नहीं होगा, वो किस तरीके से लेके चलेगा, ठीक है, कितना लॉन्ग रन विजन है आपका, ओवरऑल स्कोप और स्पेक्ट्रम कितना ब्रॉड आपने रखा हुआ है। ये चीजें आपके और मेरे डिसाइड करने की नहीं है, ये चीजें उसकी हैं जो कंपनी का सीईओ है, ये उसकी है जो कंपनी का डायरेक्टर है, ये उसकी है जिसका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, ये उसकी है जिसका रिस्क है, ये उसको पता है कि मेरी कंपनी क्या है, और सबसे ज्यादा नॉलेज उसके पास है क्योंकि ये बिजनेस दैट इज स्टार्टेड बाय हिम। तो ही और शी नोज कि मैंने इस कंपनी को क्या लेके जाना है, इसका स्कोप क्या है और इसका पर्पस क्या है। चलें फिर हम नीचे आ जाते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी से मुराद वो तरीकाकार जिससे अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, ये आप उससे जरा मिडल लेवल में आ जाते हैं। एक्शंस, रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें की जाएंगी, काम होंगे, वो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव और आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी नो मैटर कि वो बन रही है कॉर्पोरेट लेवल पे, नो मैटर वो बन रही है बिजनेस लेवल पे, नो मैटर वो बन रही है नीचे टैक्टिक्स बन रही है नीचे ग्राउंड लेवल पे, ब्रांच लेवल पे, वो स्ट्रेटेजी जो भी होगी जहाँ भी होगी उसके अंदर ये वाली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर आपको पिछले वाला आर्टिकल याद हो, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वाला, तो मैं उसमें स्ट्रेटेजी में से यही पॉइंट्स आपको निकाल के उस आर्टिकल में से जो ओरिजिनल जेन्युइन आर्टिकल है उसमें से यही चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यूनिक कंपैरेटिव पोजीशन पे काम करें। राइट, अब ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, राइट, तो उसमें आपकी कंपनी की कंपैरेटिव पोजीशन क्या होगी। गोरमे है, गोरमे की एक अपनी कंपैरेटिव पोजीशन है, कोका कोला है, उसकी एक अपनी कंपैरेटिव पोजीशन है। तो आजकल एक और वो जो बड़ा बेवरेज का आया हुआ है नेक्स्ट कोला, नेक्स्ट कोला का एक अपना कंपैरेटिव पोजीशनिंग हो सकती है बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, इसी के अलावा कोई भी किसी भी इंडस्ट्री को, कोई भी गारमेंट्स को ब्रांड उठा लें, फुटवेयर को ब्रांड उठा लें, एक्सेसरीज को ब्रांड उठा लें, मोबाइल फोन्स को ब्रांड उठा लें, तो जो भी एक कंपनी है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अपना कंपैरेटिव पोजीशन होगा। तो जो एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो बेस कर रही होती है आपकी जो कंपनी की यूनिक कंपैरेटिव पोजीशनिंग है, उस पर बेस करके आपकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगला वो कहता है कि एक्टिविटीज टेलर्ड टू स्ट्रेटेजीज। टेलर्ड टू स्ट्रेटेजीज का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह की स्ट्रेटेजी लेंगे और जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होंगे, टेलर्ड मेड, आप टेलर के पास जाते हैं अपना सूट सिलवाने। अब अंश जब टेलर के पास जाके अपना सूट सिलवाता है तो अंश की जिस तरीके की बॉडी है, जिस तरीके की आपकी मेजरमेंट है, वो उस तरीके का सूट सिला जाएगा जो अंश को पसंद है। ठीक है, जब दूसरा को साथ जाएंगे वो कहेंगे कि यार मेरे लिए सूट सी, तो उसकी हाइट कितनी है, उसके मेजरमेंट्स कितने हैं, उसको किस तरह का डिजाइन पसंद है, उस तरह की, इसको बोलते हैं टेलर्ड मेड। अब ये टेलर्ड क्या होता है कि आपकी बंदा है, इसको एडमिट कर लूंगा। चलिए, तो एक्टिविटीज जो भी होंगी, जिस तरीके से आप स्ट्रेटेजी के थ्रू एक्टिविटीज के थ्रू स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे या विजिबल बना रहे होंगे या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे होंगे, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा मिक्स और मैच होना चाहिए उन सारी चीज़ों। थर्ड पॉइंट इज क्लियर ट्रेड ऑफ्स इन चॉइसेस विद कंपैरेटर। वो कहता है कि जी एक ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिज़्ज़ा हट पिज़्ज़ा बना सकता है, बर्गर नहीं बना रहा। मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाता है, वो पिज़्ज़ा नहीं बना रहा। ठीक है, पलवान की कढ़ाई, जो अगर आप फैसलाबाद में रहे हैं तो आपने खाई होगी, वो मटन की कढ़ाई बनाता है, चिकन की बनाता है, वो वहाँ बर्गर नहीं बेच सकता, वो वहाँ फास्ट फूड नहीं बेच सकता, वहाँ वो पूरियाँ और पराठे और हलवा नहीं बेच सकता। तो उसका एक अपना, उसको पता है कि यार मेरा ये स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है, मेरी ये बिजनेस लाइन है, मैंने ये काम करना है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ट्रेड ऑफ है कि व्हाट यू चूज टू डू एंड व्हाट यू चूज नॉट टू डू, दैट इज योर ट्रेड ऑफ। तो वो आपने देख लेना है कि आपने किस मार्केट में जाना है, किस कंपैरेटर के साथ आपने टक्कर लेनी है। कंपैरेटिव एडवांटेज अराइजेस फ्रॉम फिट अक्रॉस एक्टिविटीज। अब वेरी सी बात है, आपका कंपैरेटिव एडवांटेज आपने अचीव करना है। ये मुसीबत, ये रोना, ये हर तरह के बिजनेस में रहेगा। कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव नहीं होगा तो फिर ये रोला रहेगा। आप एक चीज़ बना के बैठेंगे और आपका कंपैरेटर उस तरह की प्रोडक्ट बना के अगले दिन तो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर देगा। तो अगर कंपैरेटिव एडवांटेज है, आपने अब देखें ना, आप चले जाएं उस पर डोमिनोज पे, डोमिनोज का अगर आपने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खाया है, ये डोमिनोज को अगर आपने विजिट किया है, उसके पिज़्ज़े के रेट्स चेक कर लें,
और जाके आप जो दूसरे आपके ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अलमाइदा है या ये फोक्स एंड नाइफ्स है, जो लोकल ब्रांड्स हैं पिज़्ज़ा के, उनके रेट चेक कर लें। उसका पिज़्ज़ा 1800 रुपये का है, उसका पिज़्ज़ा आएगा 900 रुपये का, 1000 रुपये का पिज़्ज़ा, राइट। अब वो 1800 रुपये का पिज़्ज़ा है, वो 1100 रुपये का या 900 रुपये का पिज़्ज़ा है, तो फर्क तो होगा। और जो डोमिनोज के पिज़्ज़ा जो जिनको पसंद है, तो वो डोमिनोज को अपना पता है कि यार मेरा क्या पिज़्ज़ा है और मैंने किसको पिज़्ज़ा खिलाना है, राइट। और जो फोक्स एंड नाइफ्स वालों को पता है कि यार हमारे पास कौन पिज़्ज़ा खाने आता है और किसने हमारा पिज़्ज़ा खाना है। सो आप अगर एक अच्छा कंपैरेटिव एडवांटेज आप अपनी कंपनी के लिए डेवलप कर लेंगे प्रोडक्ट में, तो वो आईफोन, जैसे कि आईफोन के साथ क्या है, उसके अपने मतलब रोले हैं, उसके अपने वो शेयरिंग के लिए ब्लूटूथ नहीं लेता, उसके अलावा उसके अपने चार्जर हैं, वो कहीं कोई उसको एंड्रॉयड वाला चार्जर नहीं लगता, राइट। उसकी अपनी फेस टॉकिंग और वो फेस टाइम, और उसके अलावा उसकी अपनी जो है वो ऐप स्टोर है, और वो सारी चीज़ें। तो उसने अपने आप को इतना यूनिक और इतना डिफरेंट और इतना कंपैरेटिव बना लिया है कि मेरी तरह का फ़ोन बनाना या मेरी तरह की एक्सेसरीज बनाना वो ज़रा किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। होंडा का एक अपना कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है, टोयोटा ने अपनी गाड़ियों में, अपनी कंपनी में एक अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बनाया हुआ है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं होता। अगला पॉइंट है जी, सस्टेनेबिलिटी comes from the activity system, not the parts. सस्टेनेबिलिटी का भी एक बड़ा मतलब मसला है। मसले से मुराद ये है कि कंपैरेटिव एडवांटेज बना लेना ये आसान नहीं है, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि आप बड़े अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप शोएब अख्तर है वो फास्टेस्ट बॉलर रहा जी दुनिया में। अब आपने एक बॉल फेंक ली उस स्पीड पे, आप क्या पूरा ओवर उस स्पीड पे बॉलों को फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। आप जितनी एक्यूरेसी के साथ एक बार आपने बैट कर लिया, क्या उतनी एक्यूरेसी के साथ हर बार बैट कर लेंगे? जितनी फाइनेस्ट प्रोडक्ट आपने एक बार डिज़ाइन कर ली, क्या हमेशा से वो प्रोडक्ट इतनी फाइनेस्ट होगी? अगर तो होगी और आप उसको लंबे अर्से तक लेके चलते रहेंगे और आपसे तेज बॉलिंग कोई नहीं कर सकता, आपसे बड़ा छक्का कोई नहीं मार सकता, आपसे बेहतरीन प्रोडक्ट कोई नहीं डिजाइन कर सकता, तो फाइन, दैट्स वेरी नाइस, यू हैव रियली अचीव्ड एक सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज, यू कैन सस्टेन इट। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप आपने एक बार तीर मार लिया, 4 महीने बाद जो है दूसरे साहब आ गए, उन्होंने आपसे बेहतर परफॉर्म कर लिया, तो फिर आपका वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज था वो सस्टेनेबल नहीं। सस्टेनेबल नहीं है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना में यही तो मसला है, ठीक है। आपकी रिसर्च है, आपकी डेवलपमेंट है, आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, आपने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है, आपकी अपनी एक खूबसूरत अंदाज में अपने प्रोडक्ट को पेश किया। चाइना ने उतने ही इसी तरह की चीज़ कम पैसों में बना के माफी में फेंक दी। अब जनाब वो लोग कह रहे हैं जनाब ये भी वही फंक्शन करती है, वो भी वही फंक्शन करती है, राइट। लेकिन इसके पैसे में बहुत फर्क है। तो दिस इज हाउ कि सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस मतलब अगर आपको याद हो, मैंने बड़े तरीके में समझाई थी कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस अकेली मतलब ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होती। बट दिस वाज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये एग्जैक्ट वर्ड थे उसके, माइकल पोर्टर के उस स्ट्रेटजी वाले आर्टिकल के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस आप अचीव करें, और लेकिन अकेली ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के साथ बात नहीं बनेगी। ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि जी आपकी कंपनी 1 घंटे में 10 पिज़्ज़ा बनाती है, तब आपकी कंपनी ने 60 मिनट्स में 15 पिज़्ज़ा बनाया। तो दैट्स नाइस इफ यू हैव अचीव्ड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ जी, स्लाइड्स नंबर 16। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, vertical disaggregation, internal redesign, new organizational forms। यानी बेसिकली पता है कि आपने अब ये चीज़ें देखी होंगी कि मतलब एक कंपनी है, अस्क्री बैंक फॉर एग्जांपल, अस्क्री बैंकिंग है, अस्क्री इंश्योरेंस है, अस्क्री सीमेंट है, अस्क्री लीजिंग है, अस्क्री ये सिक्योरिटी कंपनीज हैं। अब ये हुआ क्या कि आपने ये देखा कि यार एक चीज़ में मैं सक्सेसफुली एंटर हो गई,
ठीक है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीप्लाई करूं और एक चेंज लेके आऊं, राइट। फिर मैं अपने स्टाफ को, अपने रिसोर्सेज को, अपने पोर्टफोलियोज को इधर से उधर से इधर यूटिलाइज करके एक बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। तो आपने इंटरनल रीडिजाइन शुरू कर दिया और नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी। वो आप चूंकि वो फिर ओवरऑल आपका ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गया ना। आदम जी, जैसे आदम जी ने गाड़ियां भी बनाता है, आदम जी पीवीसी पाइप्स बनाता है, आदम जी की इंश्योरेंस भी है। आदम जी एक पूरा उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज लेके आके नई ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर ली, इंटरनल रीडिजाइन कर आप लोग एक्सपेंड corporate strategy management's long term vision for the corporation। अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होगी उसमें क्या होगा, उसमें मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन होगा कॉर्पोरेशन के बारे में, कंपनी के बारे में, कि कंपनी करेगी क्या लॉन्ग रन में, कंपनी ने अचीव क्या करना है लॉन्ग रन में, कंपनी को किधर लेके जाना है। क्योंकि हम बात करें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की, ठीक। अंश की बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो, यस सर आ रही है, यस सर आ रही है। चले देखना वहां सो ही ना जाए। नो सर। चले ऑब्जेक्टिव्स, अब जारी सी बात है ये भी कॉर्पोरेट, देखो ना, बिजनेस की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट, कॉर्पोरेशन की लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखे ना। अब मैं शर्ट्स बनाता हूँ, मैं शर्ट बना के बेचता हूँ, ये मेरा लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। ये ठीक है, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी प्रोडक्ट है, मैंने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हुई हैं, वहां रखते हैं शर्ट्स। अब मेरा विजन देखेंगे तो विजन तो होगा कि यार मैंने को फैशन इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है, मैंने को अपनी फैशन इंडस्ट्री में अपनी इस कंपनी का बड़ा मकाम पैदा करना है, और मैं कोई वो वाले ट्रेंड्स और वो वाली चीज़ें अपनी टारगेट मार्केट को और अपने स्टेक होल्डर्स को सर्व करूंगा जिन्होंने कभी जिंदगी में सोची नहीं होंगी, ठीक है। ये उसका विजन होगा, वही उसका ऑब्जेक्टिव होंगे। बेच में नीचे शर्ट्स रहा होगा, काम वो वही कर रहा होगा, राइट, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होगा। एसेट्स, स्किल्स, कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें। businesses in which the कॉर्पोरेशन कम्पीट। अब ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की बात हो रही है ना, कि कॉर्पोरेट लेवल पे आपके पास एसेट्स कितने हैं, स्किल्स कितनी है, कैपेबिलिटीज कितनी, और फिर आप किन किन ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेशन के साथ कम्पीट करना चाहते हैं। अब पिज्जा को कम्पीट कौन करता है? डोमिनोज एक, पिज्जा हट दो, और उसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक आध और होगा जो पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। उसके बाद फिर सारे लोकल पिज्जा आ जाते हैं, वो उसके कंपेटिटर हैं नहीं है। अब देखो ना, फोक्स एंड नाइफ्स की 10 ब्रांचें होंगी फैसलाबाद के अंदर, दैट्स इट। उसके अलावा जो है वो क्या नाम है उसका, पिज्जा वैली के नाम से वो क्या है उसका, यार वो एक है वो भी बड़ा फेमस है फैसलाबाद के अंदर, उसकी कुछ 4 ब्रांचें होंगी फैसलाबाद के अंदर। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें डोमिनोज, चारियाज, इस तरह का एक और है, और इसको आप कंपेयर कर लें किसी डोमिनोज या इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, तो उसकी थाउजेंड्स होंगी, और दुनिया में आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको वो वाला पिज्जा मिलेगा। तो क्या ये पिज्जे वाला उस पिज्जे का कंपेटिटर है? नहीं है। अगर आप और छोटे स्केल पे आ जाएं तो पिज्जा तो आपको हर बेकरी पे भी मिलता है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी कंपेटिटर नहीं है। तो फिर आपने ये चूज करना है कि आपने बेसिकली मतलब गोरमे बेवरेजेस कोका कोला के कंपेटिटर नहीं है, वही पेप्सी के कंपेटिटर नहीं है। इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में कोक और पेप्सी दो ही बेवरेज के कंपेटिटर्स हैं, तो किसी तीसरे कंपनी को अपना कंपेटिटर ही नहीं समझते। उनकी जो स्ट्रेटजीज बनेगी, कोक बनाएगा तो पेप्सी को सामने रख के अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करेगा, पेप्सी बनाएगा तो वो कोक को सामने रख के डिजाइन करेगा। उसको नहीं पता गोरमे क्या कर रहा है, उसको नहीं पता पाक कोला क्या कर रहा है, उसको नहीं पता कि नेक्स्ट कोला को आने में क्या कर रहा है, वो उसकी खाते में नहीं आता। तो उसमें जब भी देखना वो देखना स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड प्रोसेस एंड क्रिएशन ऑफ वैल्यू। क्रिएशन ऑफ वैल्यू से मुराद ये होता है कि ऑफकोर्स आप कोई ना कोई चीज वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं ना, वैल्यू क्रिएट इन द सेंस कि अगर आपने सैमसंग एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन डिजाइन करता है और वो सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को, वो कस्टमर की नीड से बढ़ के कोई चीज ऑफर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब उसने वैल्यू क्रिएट की है। आईफोन का यूजर, एक बार कहते हैं वंस आईफोन यूजर इज ऑलवेज आईफोन यूजर, इसका मतलब ये एक वैल्यू क्रिएशन जो आईफोन ने कर दी और जो आपकी जरूरियात पूरी आईफोन से हो गई, सो नो अदर फोन कैन डू दैट। सो यू आर ओके विद iPhone because iPhone has really created value for iPhone users. Same is the case with smart television. आपने स्मार्ट टीवी बना दिया, आपने बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत सारी आगे चीजें कर दी। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसने मैनुअल गाड़ी को रिप्लेस कर दिया।
राइट। इसी तरीके से ये सारी की सारी वैल्यू क्रिएशन है। सो यू आर गिविंग बेटर प्रोडक्ट, you know, every time. Coming to the next slide, that is business and marketing strategy. So that was the corporate strategy. This is business and marketing strategy. अब ये कोर्स यार हम अगर कैंपस में पढ़ रहे होते तो आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने पे लगाने की कोशिश की थी कि हम मार्केट में जाएंगे, हम डिफरेंट ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कंपैटिटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनकी और उनके स्वॉट एनालिसिस करेंगे और फिर हम देखेंगे वो रिपोर्ट। आपको याद है ना, आपको बना के ग्रुप्स बना के हमने कुछ ऐसा सोचा था करने के लिए। हाँ, यस यस ये चीज़ों को हमने ज़रा प्रैक्टिकल साइड से देखना था, लेकिन वो क्योंकि कैंपस पे क्लासेस नहीं हो सकती, प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो अब ये किताबों में से हम पढ़ सकते हैं, कर नहीं सकते। चलो, बिजनेस एंड स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हम बात कर रहे थे जी, जी, talking about business and marketing strategy, developing the strategic plan for each business. अब एक हर बिजनेस का एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनेगा। हर बिजनेस से मुराद क्या है कि यूनिलीवर है तो यूनिलीवर के शैम्पूज हैं, यूनिलीवर के सोप्स हैं, यूनिलीवर की कोई शेविंग क्रीम व जेल्स हैं, उसके कोई रेजर है, उसके अलावा उसके कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। ठीक है, अब वो उसका जो बिजनेस है उसके हिसाब से एक टेलर मेड स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएगा, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिलेशनशिप्स, बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का आपस में बड़ा साउंड रिलेशनशिप होगा, क्योंकि मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मार्केटिंग होगी, सेल्स होंगी तो बिजनेस बूस्ट होगा। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, डेवलपिंग अ विजन अबाउट द मार्केट of interest to the organization, selecting market target strategies, setting objectives, developing implementation and managing the marketing programs, positioning, strategic design। और उसके अलावा जो कस्टमर्स एंड टारगेट मार्केट, अब ये पूरा एक मार्केटिंग प्रोसेस है। अब विजन से लेके इसमें हर सेगमेंट की कस्टमर की टारगेट मार्केट इस तरह, this is entire marketing process, developing a vision about the markets of interest to the organization, select the target market। मैंने करना क्या है, अब डोमिनोज को पता है कि यार मैंने पिज़्ज़ा बना लिया, मैंने पिज़्ज़ा खिलाना किसको, 1800 का पिज़्ज़ा कौन खाएगा, नहीं खाएगा। फोक्स एंड एफएल को पता है कि यार मैंने पिज़्ज़ा 700 का बेचना है, 600 का बेचना है, 800 का बेचना है, 900 का बेचना है। तो ये सारी वाले को पता है कि यार मेरा इस तरह का स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होगा, ये यूथ मेरी टारगेट मार्केट है, यंगस्टर्स हैं वो आएंगे इस तरीके से बैठेंगे और यहाँ बैठ के खाएंगे। एनवायरनमेंट उनकी सारी चीज़ डिफरेंट है, तो जो उनकी टारगेट मार्केट है उसके हिसाब से सारी चीज़ों को सेट करते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमने वो कस्टमर जिसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं उनको इन सारी चीज़ों को लेके चलना है। चलो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रोसेस। अब बात आ गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, नीचे जहाँ काम हो रहा है, बिजनेस जहाँ हो रहा है ब्रांच लेवल पे। सिचुएशन एनालिसिस, वेरी सी बात है, आप गुजरावाला में बैठे हैं, वहाँ की सिचुएशन कुछ और है, मैं फैसलाबाद में हूँ, यहाँ कुछ और है। मैं जब वापस अपने गांव जाता हूँ, वहाँ बिजनेस, वहाँ शहर, वो कुछ और तरह का है। राइट, लाहौर जरा डिफरेंट तरह की मार्केट है, कराची जरा डिफरेंट तरह की मार्केट है, दुबई में चले जाएँ तो इंटरनेशनल मार्केट जरा डिफरेंट है। तो सिचुएशन एनालिसिस इम्पॉर्टेंट कि आपने कहाँ बिजनेस करना है, किधर करना है।
डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सिचुएशन एनालिसिस, आपको पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट क्या होगा, कितने का बिकेगा, किस तरह का आउटलेट होगा, किधर आउटलेट खुलेगा, कितने आउटलेट खुलेगा। मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा कि यार मैं किस तरीके से अपनी मार्केटिंग ड्राइव्स शुरू कर सकूँ, मैं लोगों को किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे सकूँ, मैं कितना अच्छा एक एक्वेंटेंस डेवलप कर सकूँ, so that the people or the target market they come to know ये brand है, ये product है, and implementing and managing the marketing strategy. So first you do situation analysis, then you design marketing strategy, then you develop a marketing program, and then you simply implement all these things which you have been thought of for the design. Situation analysis is important. Situation analysis is another name of SWOT analysis. क्या आपने अपनी strengths, weaknesses, opportunities, threats, आपको 2-3 और डिटेल्स होते हैं एनालाइज करने के, उनकी बेसिस पर आप जाके चीज़ों को डिजाइन कर लो. Now moving to the slide number 10. This is about marketing strategy process. Strategic situation analysis, vision, structure, segmenting the markets, continuous learning about the markets. ये चीज़ें ये जो इस स्लाइड पे आपको नजर आ रही है, ये पढ़ने में 2-4 लाइनें हैं, लेकिन इसको करने में, उसको सीखने में नस्लें लगती हैं और साल लगते हैं. आपको समझ नहीं आती कि आपके बिजनेस के साथ हो क्या रहा है. भाई आपकी कपड़े की दुकान बंद हो रही है, लेकिन दुनिया में जो वॉलमार्ट है उसका मार्केट शेयर बहुत ऊपर जा रहा है. ठीक है, आपका जूता कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन दुनिया में नाइकी के जूते बहुत बिक रहे हैं. उसका मतलब है कोई ना कोई रोला है ना. मतलब आपकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन क्या है, आपका विजन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एनालिसिस किस तरीके से आप करते हैं, आप किस वाली मार्केट को अपने जूता बेच रहे हैं, सेगमेंट्स आपके बड़े कौन से बने हैं, और आप अपनी मार्केट से और अपने एक्सपीरियंस से कितना कंटिन्यूस बेसिस पे लर्न कर रहे हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. पहली ये बात होती है कि मतलब आज हम एप्पल फ़ोन की बात करते हैं, आईफोन की बात करते हैं, तो आईफोन की कंपनी तो जाकर स्टार्ट हुई थी तो 1967 में. तो उसको तो कोई 50 साल लगे भैया, 20 साल, हाँ 50 साल लगे हैं एक अच्छा फ़ोन बनाने में, करने में. वो तब तो स्टीव जॉब्स बड़ा यंग था बेचारा जब उसने इस कंपनी को स्टार्ट किया, और वो किस तरीके से उसने मेहनत की और 10 तरह की चीज़ें और 10 तरह के फेलियर से गुजर के वो आके एक अच्छा फ़ोन बनाने में कामयाब हुआ. ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके विजन में. मतलब जैसे अब कल परसों बजट पेश हुआ और ये मतलब अगर आपने सब लोगों की पार्लियामेंट में स्पीचेस सुनी हो, तो आप बंदाजारी बात ऑपोजिशन है, उसने उसको क्रिटिसाइज करना है, तो वो उस पर वो क्या वो यही बात कर रहे थे कि जी मतलब इमरान खान है, ठीक है, मुल्क के हालात ठीक है नहीं है, पॉलिटिक्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उस बंदे को 22 साल लग गए कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बनने में और चीज़ों को करने में. तो ये डिपेंड करता है कि आपका विजन था क्या, ओवरऑल लॉन्ग रन में आपने क्या क्या सुना, क्या क्या बर्दाश्त किया, किस तरीके से लेके चले चीज़ों को, और किस तरीके तक आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं. तो ये आसान नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए भी कि वो जब बनती है, ये जब ये विजन और ये स्ट्रेटेजिक पोजीशंस की बात करते हैं, तो ये एक ग्लोबली रिनाउंड ब्रांड्स की बात हम करते हैं तब जाके समझ में आती है. वरना एक जो एक ऑर्डिनरी माइंड का बिजनेस होता है वो क्या करता है, वो उसने अपनी दुकान खोली, वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो सस्ता कपड़ा पूरे शहर में जहाँ से मिलता है वो ले आएगा,